हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, घर पे हैं, सेफ़ हैं और बस हमारे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल हैम्पर ना हो। और आज हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का यूनिट 1 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और चलिए हम लोग अपने टॉपिक्स को देख लेते हैं। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। So our first topic will be introduction. Now in this topic we will try to understand what is this chapter all about. ठीक है। Our next topic will be the First World War in India. So what was the political and economic situation of India during the First World War? Then the idea of Satyagraha. So we will try to understand what is the idea of Satyagraha and how did it evolve in India. Then the Rowlatt Act, the Jallianwala Bagh massacre, a very important incident as far as Indian history is concerned. Then the Khilafat movement and why non-cooperation movement. So what was the significance of non-cooperation movement in Indian freedom struggle? ठीक है. So these are the topics which we will cover in this particular unit. Now, since this unit is a large unit, I have decided to divide the lecture into two parts. ठीक है. So हम अपने part 1 में first 3 topics को discuss करेंगे. That is introduction, the First World War in India and the idea of Satyagraha. And we will cover the बाकी के पोर्शन को हम लोग अपने subsequent lecture में cover करेंगे. So let us start with the first topic, introduction. Now, in India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately concerned to the anti-colonial movement. यानी इंडिया में और बाकी सारे कॉलोनीज़ में भी, ठीक है, सो ब्रिटेन के जितने भी कॉलोनीज़ थे, सारे कॉलोनीज़ में द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. तो ये जो नेशनलिज्म का जो ग्रोथ है, मॉडर्न नेशनलिज्म का जो ग्रोथ है, ये कनेक्टेड है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ. ठीक है. सो व्हाट डू वी मीन बाय नेशनलिज्म? नेशनलिज्म मीन्स लव फॉर वंस ओन कंट्री. ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट नेशनलिज्म. सो इंडिया में और बाकी सारे कॉलोनीज़ में जो नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, मॉडर्न नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, ये कनेक्टेड है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. ठीक है. सो ये जो यूनाइटेडनेस का फीलिंग है, ठीक है, among the countrymen, people began discovering this unity in the process of their struggle with colonialism. So during the struggle with colonialism, people started discovering this sense of unity among themselves. ठीक है. So this sense of unity was not there before this anti-colonial movement, we can say. ठीक है. So जैसे anti-colonial movement ये spread होता गया, जैसे जैसे इसका इंटेंसिटी इंक्रीज़ होता गया, वैसे वैसे लोगों में ये जो नेशनलिज्म का फीलिंग है, ये भी ग्रो होता गया. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. ठीक है. So we can say that before anti-colonial movement, ठीक है, this sense of unity was not there in India and as well as in other colonial countries also. But जब ये anti-colonial movement शुरू हुआ and the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. So ये जो sense था of being oppressed under colonialism, so everyone was being oppressed under colonialism. ठीक है. So each and every part of India was being oppressed with this colonialism. और ये जो colonialism था, लोग सभी जगह ऑप्रेस हो रहे थे. This oppression provided a shared bond
दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। तो पहले क्या होता था कि अगर वेस्ट बंगाल में लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में, तो वो एक लोकल मूवमेंट वेस्ट बंगाल का ही बन के रह जाता था। अगर कोई महाराष्ट्र में सपोज़ कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो एक लोकल मूवमेंट महाराष्ट्र में ही बन के रह जाता था। सो इट कुड नॉट अटेन द पॉपुलैरिटी एट द कंट्री लेवल, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सेंस ऑफ यूनिटी है ये नहीं क्रिएट हो पाता था, ठीक है। बट धीरे धीरे जब लोगों को ये पता चलता गया कि यार ऑप्रेस तो इंडिया में रहने वाले सभी लोग हो रहे हैं, चाहे वो बंगाल में रह रहे हों या फिर महाराष्ट्र में रह रहे हों या फिर साउथ इंडिया के किसी पोर्शन में रह रहे हों या फिर पंजाब में रह रहे हो, मैसूर में रह रहे हो, ऐसा कोई एरिया इंडिया का नहीं बचा था एक्सेप्ट सम एरियाज़ ऑफ ईस्टर्न इंडिया जहाँ पे ब्रिटिश colonial रूल नहीं था, एंड एवरी वन वॉज बींग ऑप्रेस्ड इक्वली, एंड दिस ऑप्रेशन प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड। तो लोगों को ऐसा लगा कि यार हम लोग सभी लोग ऑप्रेस हो रहे हैं, सो वाई नॉट वी यूनाइट among ourselves and then try to fight against this colonialism. But each class and group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. लेकिन जो different class और groups थे, ठीक है, जो इस colonialism के effect से suffer कर रहे थे, they basically जो colonialism का effect था different class के ऊपर different effect था, ठीक है. Their experiences were varied. For example, एक peasant class है, ठीक है, और एक सपोज़ एजुकेटेड क्लास है, ठीक है. सो पेजेंट क्लास से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं उनके ऊपर कॉलोनियलिज्म का इफ़ेक्ट अलग था, और जो एजुकेटेड क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कॉलोनियलिज्म का इफ़ेक्ट डिफरेंट था, ठीक है. सो डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंड इसी वजह से जो डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल हैं उनके हिसाब से फ्रीडम का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट था. अब एक पेजेंट के लिए, पेजेंट क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए फ्रीडम का क्या मीनिंग होगा? फॉर देम फ्रीडम मीन्स के उनको उनका जो लैंड राइट्स है वो मिलना चाहिए, उनसे जो इतना हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो रिड्यूस होना चाहिए टैक्स, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट फ्रीडम मीन्स टू दैट क्लास. तो उसको पूरे कंट्री से कोई मतलब नहीं है, उसका अपना लैंड राइट्स मिल जाएगा, उसको अपना टैक्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ही इज़ सेटिस्फाइड विद दैट. बट एक एजुकेटेड क्लास से बिलोंग करने वाला अगर कोई पर्सन है, उसके लिए फ्रीडम का मीनिंग डिफरेंट होगा. उसके लिए फ्रीडम का मतलब होगा कि उसके एजुकेशन के हिसाब से उसको जॉब मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में नहीं मिलता था. इंडियंस को के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है. सो इंडियंस चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको हमेशा एक यूरोपियन से नीचे ही पोस्ट उसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है. So this was the kind of experiences. Different class of people have different experiences of colonialism, and notion of freedom was also different for different class of people. Then the Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement. So जब महात्मा गांधी इंडिया में आए 1915 में, और कांग्रेस को बेसिकली उन्होंने टेक ओवर किया, एंड सो ही ट्राइड टू फॉर्ज दीज ग्रुप्स. तो ये जो डिफरेंट क्लास में डिवाइडेड था सारा ग्रुप्स, ठीक है, ही ट्राइड टू फॉर्ज दीज ग्रुप्स. तो उनको ऐसा लगा कि जब तक ये सारे ग्रुप इकट्ठा नहीं होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, ठीक है, तब तक एक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं क्रिएट किया जा सकता. और ये जो छोटा छोटा मूवमेंट्स है, अगर एजुकेटेड क्लास अपना अलग मूवमेंट चला रहे हैं फ्रीडम का, फिर जो पेजेंट क्लास है वो लोग अपना अलग मूवमेंट चला रहे हैं, तो उससे ब्रिटिशर्स को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है. सो एवरीवन नीड टू बी यूनाइटेड, सारे क्लास को यूनाइट करना पड़ेगा, एंड देन वी नीड टू लॉन्च एन ऑल इंडिया मूवमेंट. एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा, ऑल इंडिया कैरेक्टर का मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस कॉलोनियलिज्म को फाइट दे सकते हैं.
In this chapter, we will pick up the story from 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movements. So इस चैप्टर में हम लोग जो है अपने स्टोरी को 1920s से हम लोग पिकअप करेंगे, बिकॉज 1920s से पहले का इंसिडेंट जो है हम लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी कवर कर लिया है. ठीक है. सो क्लास 10 में हम लोगों को 1920 के बाद का इंसिडेंट जो है वो पढ़ना है, और इसमें हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, इन सारे मूवमेंट्स को हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे. So this is the introduction of the chapter. So from this introduction we understood कि हमें इस chapter में या फिर इस unit में पढ़ना क्या है. ठीक है. Now let us move on to our next topic, which is the First World War and India. So First World War created a new economic and political situation. So जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर 1914. यस. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. ठीक है. उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ. यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में काफ़ी चेंजेस आया. And here we are talking about economic and political situation of India. Then it led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans. So huge increase in defense expenditure. वैसे भी पहले ब्रिटिश जो है अपने रेवेन्यू का, इंडिया से जो भी रेवेन्यू वो लोग कलेक्ट करते थे, वो रेवेन्यू का ज़्यादातर पोर्शन जो है वो डिफेंस के लिए, मिलिट्री के लिए, पुलिस के लिए स्पेंड करते थे, और सोशल वेलफेयर के लिए और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के लिए. ठीक है. बहुत कम पैसा खर्च किया जाता था. बट वॉर शुरू होने के बाद तो ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. ठीक है. और इस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए ब्रिटिशर्स हैड टू टेक लोन्स, वॉर लोन्स, एंड दे ऑल्सो हैड टू इंक्रीज टैक्सेस. किस तरीके का टैक्सेस इंक्रीज़ किया गया? कस्टम ड्यूटीज़ वर रेस्ड एंड इनकम टैक्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ द वॉर वॉज फाइनेंस्ड. एंड थ्रू द वॉर ईयर्स prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for common people. और जब तक ये वॉर कंटिन्यू चलता रहा, प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड. ठीक है. कॉन्स्टेंटली. और ये वॉर के समय में हमेशा होता है. कोई भी कंट्री अगर वो वॉर में जाता है, ठीक है, तो उस कंट्री में हम लोग ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो प्राइसेस ऑफ एवरीडे आर्टिकल्स है, ठीक है, नेसेसरी गुड्स है, वो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होने लगते हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी. सो थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड एंड इट ऑलमोस्ट डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1919. ठीक है. सो 1913 से 1918 के पीरियड में तो प्राइसेस डबल हो गया, विच लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल. Villagers were called upon to supply soldiers. So Britishers ने एक पॉलिसी ये बनाया है कि they will recruit soldiers from villages. ठीक है. बिकॉज विलेजेस में वैसे भी लोगों के पास जो है जॉब्स नहीं थे. सो एंड मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ टाइम यूज टू लिव इन विलेजेस. ठीक है. आज भी इंडिया के ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में ही रहते हैं, बट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम और ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहते थे, और विलेज में रहने वाले लोगों के पास कोई परमानेंट जॉब नहीं था. सो बेसिकली ऑल ऑफ देम वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. ठीक है. सो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि वी कैन रिक्रूट सोल्जर्स बिकॉज दे रिक्वायर्ड सोल्जर्स फॉर वॉर, और उन्होंने फिर विलेजेस से, इंडियन विलेजेस से सोल्जर्स को रिक्रूट करना शुरू किया. ठीक है. और ये रिक्रूटमेंट जो है वो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था काफ़ी बार. फोर्सफुली विलेजेस को ये कहा जाता था, विलेज के हेड को ये कहा जाता था कि आपको अपने विलेजेस से एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को सेंड करना है. ठीक है. ताकि वो मिलिट्री को ज्वाइन कर सकें, जिसके वजह से इट कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर अमंग दी पीपल. ठीक है. इसके वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो इंक्रीज़ हो गया.
Then in 1918-19 and 1920-21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortages of food. So 1918-19 और 1920-21 का जो पीरियड है उसमें एग्रीकल्चर जो है वो फेल हो गया. क्रॉप्स फेल्ड probably because of bad monsoon, और in many parts of India it resulted in acute shortages of food. So बहुत सारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में it led to shortages of food. एंड दिस वॉज accompanied बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. ठीक है, सो जैसे अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक स्प्रेड हो रखा है पूरे वर्ल्ड में, वैसे ही उस वक्त इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो है स्प्रेड हो गया पूरे इंडिया में. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फैमिन्स एंड एपिडेमिक. सो अगर 1921 का सेंसस हम लोग देखें तो उससे ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड, दे डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ फैमिन्स एंड एपिडेमिक दैट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो ह्यूज डिवास्टेशन टुक प्लेस इन 1921. So this was the economic and political situation of India during the First World War. Then our next topic will be the idea of Satyagraha, and this will be the last topic of part 1. So this concept of Satyagraha was propounded by Mahatma Gandhi. We all know that. Now Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. He had come from South Africa, ठीक है, where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह. So वो इंडिया वापस आए थे जनवरी 1915 में फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो साउथ अफ्रीका की जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, ब्लैक्स के साथ जो है वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था. सो वाइट्स जो थे साउथ अफ्रीका में दे वर इन माइनॉरिटी, बट गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल जो है वो वाइट्स के पास ही था. ठीक है, एंड दे यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ब्लैक्स. So this racist regime, ये जो racist regime था, and many Indians were also there in South Africa, and Indians were also considered to be blacks. So गांधी जी जो है वहाँ पे उस racist regime, racist government के against में एक mass agitation कर रहे थे. ठीक है, he was protesting there for some rights of black people. और उनका जो मेथड ऑफ स्ट्रगल था वहाँ पे, इट वॉज कॉल्ड मास स्ट्रगल, जिसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया. ठीक है, नाउ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. सो ये जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है सत्याग्रह का, इट बेसिकली एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ. ठीक है, सो गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम लोग ट्रूथ पे फोकस करें, ठीक है, ट्रूथ हैज़ सो मच पावर, and we always need or we always be looking for truth. ठीक है, सो अगर हम लोग हमारा जो रिवोल्ट, हमारा जो प्रोटेस्ट है, अगर वो सही है, ठीक है, अगर वो ट्रूथ पे बेस्ड है, देन वी नीड नॉट गो थ्रू वायलेंट मेथड्स. हम लोग अगर नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो भी हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं. So it suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर cause true है, अगर सही cause है बिल्कुल, and if the struggle was against injustice, तो हमारा जो struggle है अगर वो injustice के against में है, तो फिर physical force का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, there is no need of violence to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. यानी बिना वेंजेंस के, बिना बदले की भावना के और बिना अग्रेसिव हुए भी हम लोग और या फिर एक जो सत्याग्रही है वो बैटल को जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस. सो देयर इज़ नो नीड टू सीक वेंजेंस और टू बी अग्रेसिव. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth. So everyone should be persuaded to see the truth, चाहे वो oppressor ही क्यों ना हो. He should be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through use of violence. तो हम लोग
किसी को भी वायलेंस के थ्रू उसको किसी भी पर्सन को परसुएड नहीं कर सकते, ठीक है. सो इट इज़ ओनली थ्रू नॉन वायलेंस थ्रू विच वी कैन परसुएड पीपल, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी. देन so what Mahatma Gandhi thought about satyagraha? Satyagraha is not physical force. A satyagrahi does not inflict pain on the adversary. He does not seek his destruction. In the use of satyagraha, there is no ill will whatever. So satyagraha is not physical force. Satyagraha is not related to violence. एक सत्याग्रही जो होता है, he or she does not inflict pain on the adversary. वो कभी भी अपने ऑप्रेसर को दुख देने के बारे में, पेन देने के बारे में नहीं सोचता. ही डज़ नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन. वो उसको डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोचता, अपने ओपोनेंट को वो डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोचता. इन द यूज़ ऑफ सत्याग्रह देर इज़ नो इल विल, ठीक है. तो जब हम लोग सत्याग्रह का यूज़ करते हैं देन देर इज़ नो प्लेस फॉर इल विल इन सत्याग्रह. And it is certain that India cannot rival Britain or Europe in force of arms. So Mahatma Gandhi firmly believed that India cannot compete Britain or Europe in force of arms. ठीक है. So arms और equipments के साथ अगर हम लोग ब्रिटेन से fight करने का कोशिश करें तो we cannot compete because we did not have such capacity. We did not have that number of arms and equipment so that we can fight against British through violent means. The British worship war god and they can all of them become, as they are becoming, bearers of arms. So British जो है वो basically war god को worship करते हैं, ठीक है. And therefore they are becoming bearers of arms. और इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स, गन्स, टैंक्स ये सब जो हैं अक्वायर कर रहे हैं. द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म्स, ठीक है. दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन. बट इंडियंस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. इंडियंस कैन नॉट डू दैट. वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू अक्वायर आर्म्स, ठीक है. सो वी नीड टू फॉलो नॉन वायलेंस, ठीक है. हमें नॉन वायलेंस के थ्रू अपने मीन्स को अचीव करना पड़ेगा. सो दिस इज़ वॉट महात्मा गांधी थॉट अबाउट सत्याग्रह एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह गिवन बाय महात्मा गांधी. नाउ लेट अस लुक कि ये जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है इसको एज एन एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी ने इंडिया में कई जगह पे इस्तेमाल किया. तो एक तो साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी उन्होंने इस तरीके का मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो यूज़ किया था एंड देयर वाज सक्सेसफुल. और इंडिया में भी कई प्लेसेस पे उनको मौका मिला अपने इस कॉन्सेप्ट को के साथ एक्सपेरिमेंट करने का. सो लेट अस लुक के वो कौन कौन सा इंसिडेंट था. सो फर्स्ट इंसिडेंट इज़ अबाउट चंपारण. In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. So 1916 में चंपारण में वो जाते हैं. चंपारण इज़ अ प्लेस इन बिहार एंड देयर ही इंस्पायर्ड द पेजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम्स. सो जो चंपारण में ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम था वहाँ के पेजेंट्स को फोर्सफुली इंडिगो प्लांट करने के लिए कहा जाता था, ठीक है. सो इस ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने पेजेंट्स को स्ट्रगल करने के लिए इंस्पायर किया. बट पीसफुल मीन्स, ठीक है, थ्रू पीसफुल मीन्स, नॉट थ्रू वायलेंट मीन्स. Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat, ठीक है. So 1917 में उन्होंने एक और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया इन ऑर्डर टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. अच्छा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पेजेंट्स थे उनका क्या इशू था? अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक, द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड. सो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पेजेंट्स थे दे वर अफेक्टेड बाय अ प्लेग एंड फेलियर ऑफ क्रॉप.
एंड देयरफॉर दे कुड नॉट पे द रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू पे करना होता था ब्रिटिश को, वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट इज़ वाई दे वर डिमांडिंग के जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको रिलैक्स कर दिया जाए कुछ समय के लिए, उसको जो है रेवेन्यू कलेक्शन को ख़त्म किया जाए कुछ समय के लिए, बिकॉज दे कैन नॉट पे द रेवेन्यू, क्रॉप्स हैव फेल्ड, प्लेग एपिडेमिक स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज द कंसर्न ऑफ द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, एंड गांधी जी ही वेंट टू खेड़ा एंड organized a satyagraha to support the peasants. Now in this particular movement, Vallabhbhai Patel was also very instrumental, ठीक है। So it is not given in your book, but still you need to remember this. Now in 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers. और 1918 में भी फिर एक और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया in Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers. So अहमदाबाद में एक कॉटन मिल था, वहाँ के वर्कर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे टू इंक्रीज़ देयर वेजेस, बट वेजेस उनका इंक्रीज़ नहीं किया जा रहा था। सो महात्मा गांधी ने वहाँ भी एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया 1918 में, और थ्रू नॉन वायलेंट मेथड्स जो मिल वर्कर्स का कंसर्न था उसको रेस किया गया। So these are some of the experiments which Gandhiji did as far as his satyagraha is concerned. So here our part 1 of unit 1 ends. हम लोग अपने पार्ट 2 में बाकी के पोर्शंस को भी कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। फॉर मोर कोर्सेज विजिट आवर वेबसाइट cr-classes.com, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।